Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medibill Pro. I hope you guys will be fine and doing great as always. So today we are going to cover another kind of a thing in this medical billing basic course. So I have received different kind of a questions from different people. Okay, so we are just going to cover frequently asked questions like what are your different kind of confusions, problems and concerns in related to medical billing. So we are just going to cover all that kind of a stuff in this lecture. Okay, we will surely try to cover different kind of questions which you usually have, like how can I get certifications in medical billing, how can I get medical billing jobs, and what are the different medical billing terms. So we will just cover all that kind of a stuff in this lectures today. Okay, so let's start the lecture. Okay, as you guys can see that if you are confused about medical billing, you are not alone. In this video, we will answer some of the most frequently asked questions about medical billing to help the process of medical billing for you. Okay, so we will cover most of the things in this lecture. Like you can say that what is medical billing. Okay, so medical billing क्या होती है, इसके अंदर किस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, or maybe we'll just cover in short because we have already discussed different kind of things, but this is for the newcomers. Okay, उनको सही समझ नहीं आ रही होती, कुछ चीज़ें उनके लिए ट्रबल कर रही होती हैं. So we will just cover all that kind of stuff in this one. Okay, how does medical billing work? How do I become certified in medical billing? Means certifications आप किस तरीके से कर सकते हो? What is the difference between medical billing and medical coding? Medical billing क्या चीज़ होती है? Medical coding क्या चीज़ होती है? So इनके दरमियान differences क्या होते हैं? And what qualifications are needed to work in medical billing? और qualification क्या require होती है medical billing के लिए? और communications किस तरीके की होनी चाहिए, means how what kind of a English communication skills do you need to work in medical billing. Okay, how can I get jobs, office based or remote jobs in medical billing. So we are just going to cover all this kind of a stuff in this lecture. Okay, so there is much more, but these are the basic kind of a things which we are just going to cover in this one. Okay, so the first one is what is medical billing? Okay, medical billing is a process of submitting claims and following up on claims with health insurance companies to receive payment for the healthcare services provided to patients. मीन्स जब भी कोई मेडिकल प्रोवाइडर किसी भी पेशेंट को कोई मेडिकल बिलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जो पेशेंट की इंश्योरेंस होती है तो उसको क्लेम बनाया जाता है, और वो जो मेडिकल ऑन बिहाफ ऑफ मेडिकल प्रोवाइडर, वो क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करते हैं, एंड दे जस्ट पे फॉर द सर्विसेज विच वर रेंडर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स बाय अ मेडिकल बिलिंग प्रोवाइडर. ठीक है, कोई भी मेडिकल प्रोवाइडर है, उसने किसी भी पेशेंट को सर्विस दी है, तो मेडिकल प्रोवाइडर क्लेम बनाएगा, क्लेम बना के इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम की पेमेंट कर देगी. दैट्स इट. मींस ये इसके अंदर काफ़ी सारी और चीज़ें आ जाती हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस काइंड ऑफ अ टॉपिक इन डिटेल्ड. Okay, so the first lecture you can just watch on this medical billing basic course, but in this we are just going to cover these kind of things in short. Okay, so medical billing इस तरीके से होती है कि हाँ भी इसके अंदर पेशेंट्स को जितनी भी सर्विसेज कोई भी मेडिकल प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट किया है, कोई डायग्नोसिस किया है, कोई ऑफिस के अंदर चेकअप हुआ है, so this kind of a thing can be means explain in different kind of a claims. ये claims हम इंश्योरेंस को सेंड करते हैं, इंश्योरेंस उन claims को प्रोसेस करती है, एडजुडिकेट करती है, एंड दे जस्ट पे फॉर द सर्विसेज which were rendered by a different provider. Okay, so what qualifications are needed to work in medical billing? Means medical billing के अंदर नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मीन्स किस किस्म की क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, तब आप जाके मेडिकल बिलिंग के अंदर मीन्स ये है कि काम कर सकते हो. So while formal education in medical billing or related field can be beneficial, means अगर आपके पास मेडिकल बिलिंग रिलेटेड मीन्स ये है कि मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों के पास मीन्स ये है कि क्वालिफिकेशंस हैं, तो फिर ये आपके लिए मीन्स बेनिफिशियल हो सकता है. बट अदरवाइज इफ़ यू आर मीन्स फ्रॉम IT, आर्ट्स, commerce or any other kind of a field, so that doesn't matter. You just need a good practice, good training to be in medical billing, to kickstart your career in medical billing. Okay, so many professionals learn through on the job training or pursue certifications programs offered by organizations like AAPC or AHIMA. ठीक है, मोस्टली जब भी आप किसी मीन्स एज अ इंटर्न आते हैं, ठीक है, तो आप लोग मीन्स ये है कि ऑन जॉब ही अपनी जो मीन्स है कि क्वालिफिकेशंस होती हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, अपनी जो आपकी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं उसके अंदर ही आप सीख जाते हो. ठीक है, इसके लिए आप लोगों के पास कोई प्री क्वालिफिकेशन, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हाँ भी एक स्पेसिफाइड ये आप डिग्री करके आए तो ही आप मेडिकल बिलिंग में आ सकते हैं. नो, इसके लिए आप सिंपली ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 14 ईयर्स ऑफ मीन्स एजुकेशन हो, और इसके अलावा आप लोगों के पास ये होना चाहिए कि हाँ भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स तो मीन्स यू गाइस नो दैट नॉट नेसेसरली मीन्स
ज़्यादा मीन्स ये है कि इस चीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं होती, बल्कि हर चीज़ के अंदर ही इंग्लिश की कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज यू गाइज नो दैट वी आर लिविंग इन एन ईरा वेयर इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, सो इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के वजह से मीन्स ये है कि आप किसी भी जॉब के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है आप लोगों को इंग्लिश के अंदर ही कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट से कन्वर्सेशन करते हो तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है इंग्लिश के साथ ही कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न, सो यू गाइज नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और गुड कमांड ओवर द इंग्लिश। ओके, सो इंग्लिश के अंदर अगर आप मीन्स ये कि बात करते हो, कोई मीन्स ये कि करनी पड़ती है, तो ये है कि आप लोगों का एक अच्छा जेस्चर जाता है। और मेन चीज़ ये है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ मेडिकल बिलिंग देन यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स in English. Okay, so because you guys need to talk to different insurance companies and their representative which are available over there, they usually you know about English. Okay, क्योंकि उनको मीन्स है कि इंग्लिश के अंदर ही आप लोगों ने कन्वर्सेशन करनी होती है, तो इंग्लिश ही एक बेसिक मीडियम है टू कन्वे योर मैसेज, टू गेट द क्लेम स्टेटस, टू गेट द eligibility verification or different kind of things from different insurance companies. Okay, so these kind of things are quite necessary for you to be in medical billing. ओके, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट आर द कॉमन कोड्स यूज इन मेडिकल बिलिंग, मींस मेडिकल बिलिंग के अंदर कौन से कॉमन कोड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। कॉमन कोड्स इंक्लूड सीपीटी, ठीक है, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, और फॉर प्रोसीजर्स आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज फॉर डायग्नोसिस एंड हिकपिक्स हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोड्स फॉर सप्लाईज एंड सर्विसेज। ठीक है, सीपीटी हमने इन तीनों चीज़ों को मीन्स है कि ऑलरेडी अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिटेल्ड मीन्स इनको देख चुके हैं। यू गाइस कैन वॉच दैट काइंड ऑफ लेक्चर्स if you want a detailed overview on CPT, ICD and HICPICS. Okay, but CPT क्या होते हैं, जो भी किसी प्रोवाइडर ने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो उसको हम जब कोडिंग, जो मेडिकल कोडर होते हैं वो उन सर्विसेज को, ठीक है, सीपीटी के अंदर चेंज कर देते हैं। और अगर जो मेडिकल प्रोवाइडर है उसने डायग्नोस किया कि हाँ इस पेशेंट को ये बीमारी है, मीन्स ये कि कोई भी डिजीज़ है, उसको हम आईसीडी के अंदर चेंज करते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, और सीपीटी से हट के कोई अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, लाइक कोई एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की गई है या कोई और सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो उसके अंदर जो मीन्स ये है कि सर्विसेज आ जाती हैं वो हिकपिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज द मीन्स ये है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स। हाउ डू आई बिकम सर्टिफाइड मेडिकल इन मेडिकल बिलिंग, अगर आप मीन्स ये है कि मेडिकल बिलिंग के अंदर सर्टिफिकेशंस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यू कैन बिकम सर्टिफाइड बाय पासिंग एन एग्जाम ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक एएपीसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल बिलर्स और एएचआईएमए सर्टिफाइड कोडिंग एसोसिएट। ठीक है, अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेशन करनी है इन मेडिकल बिलिंग के अंदर या मेडिकल कोडिंग के अंदर, देन यू कैन जस्ट एएपीसी की वेबसाइट के ऊपर जाएं। वहाँ पर यह है कि मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर इसके ऊपर बना चुका हूँ, सर्टिफिकेशंस इन मेडिकल बिलिंग, यू कैन वॉच दैट वन, कि हाँ भी उसके अंदर क्या क्राइटेरिया होती है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है। आप also I want to let you know guys that they are also offering trainings as well. ओके, मीन्स ये है कि वो ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, और पेपर किस तरीके से आप दे सकते हैं, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन भी है, मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं फिजिकल वहाँ पर जाके दे सकते हो, और ऑनलाइन भी होते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, सो आई हैव डिस्कस्ड दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन डिटेल, यू कैन जस्ट वॉच दैट लेक्चर फॉर फुल डिटेल्स। ओके, सो इस तरीके से आप यह है कि मेडिकल बिलिंग के अंदर सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। Okay, so next is what is the difference between medical billing and medical coding? Yes, what is medical billing and medical coding? इन दोनों के दरमियान difference means ये है कि क्या होता है। Medical billing involves submitting and processing claims for payment, while medical coding involves assigning codes to diagnosis and procedures for billing and statistical purposes. Yes, as we have already mentioned in previous slide कि हाँ भी उसके अंदर जैसे हमने CPT, ICD और HICPICS को देखा है, उसके अंदर मीन्स मेडिकल बिलिंग के अंदर यही होता है कि हाँ भी आप क्लेम्स इंश्योरेंस को सबमिट करते हो, उनके ऊपर फॉलो अप करते हो, उनका कोई डिनाइल आता है उनको ये है कि प्रोसेस करवाते हो, उनकी पेमेंट्स रिसीव करते हो। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन मेडिकल बिलिंग, बट ऑन द अदर हैंड इन मेडिकल कोडिंग द मेडिकल कोडर आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग, मीन्स ये है कि वो ये कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट डिसाइफरिंग, मीन्स ये है कि इन कोड कर रहे होते हैं जितनी भी म्यूजिक मेडिकल प्रोवाइडर ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और इसके अलावा कोई उसने डायग्नोसिस किया है कि किसी पेशेंट को क्या बीमारी है, किसी उसके ऊपर क्या प्रोसीजर किया गया है। सो इन सारी मीन्स है कि डिस्क्रिप्शंस को दे आर जस्ट गोइंग टू कोड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कोड्स। ठीक है, आईसीडी कोई प्रोसीजर कोड है तो उसको सीपीडी के अंदर, कोई डायग्नोसिस कोड है तो उसको आईसीडी के अंदर। और ठीक है, तो इस तरह की ये जो चीज़ें होती है ये चल रही होती हैं। ओके, सो इस तरीके से ये है कि मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग के अंदर ये डिफरेंसेस होते हैं।
Okay, what are the common challenges faced in medical billing? Common challenges include dealing with claim denials, navigating complex insurance policies, ensuring compliance with regulations like HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, and staying up to date with coding changes. Yes, इसके अंदर काफ़ी सारी मीन्स ये है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, challenges आते हैं। जाहिर सी बात है, कभी पेशेंट्स की एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही होती, फिर फैसिलिटी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उनको फैक्स करनी पड़ती है, पेशेंट को कॉल करनी पड़ती है, इंश्योरेंस के ऊपर डिनाइल्स आ जाती हैं, कुछ डिनाइल्स मीन्स ये है कि पैथेटिक होते हैं। सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेडिकल बिलिंग के अंदर आती हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न मोर, यू अर्न मोर। ओके, ठीक है, आप आहिस्ता 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 मीन्स ये है कि जिस तरीके से मेडिकल बिलिंग को सीखते जाते हो, और बेसिकली जो लर्निंग फेज होती है ये आपकी मेडिकल बिलिंग के जॉब के अंदर जब आप कर रहे होते हैं तभी आप सीख रहे होते हैं। ओके, सो वी आर जस्ट कवरिंग दीज things in a theoretical way. Okay, this is the basic knowledge कि हाँ भी आप लोगों को मेडिकल बिलिंग की थोड़ी समझ आ जाए। Okay, so if you are working as an internship, as an intern in any kind of a company, then you can just learn a lot of things at that place. Okay, क्योंकि वहाँ पर आपको लोगों को बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है। जब प्रैक्टिकल नॉलेज आता है तभी आप लोगों के पास एक्सपर्टीज आती है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग के अंदर टेक्नोलॉजी मीन्स ये है कि कौन सी यूज़ की जाती है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का रोल बेसिकली क्या होता है। Technology plays a significant role in streamlining processes, improving accuracy, and enhancing efficiency in medical billing tech through electronic health records, EHR, practice management software, and billing systems. Yes, you guys know that we are just storing different kind of patients data, medical records, and all that kind of a stuff in a specific software. Okay, we are also sending the claims through different kind of a software. medical billing के अंदर काफ़ी सारे softwares यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, we have already covered this lecture कि हाँ भी बेस्ट सॉफ्टवेयर मेडिकल बिलिंग के कौन से हैं, उनकी प्राइसेस क्या होती हैं, और उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं होती हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस लेक्चर इन माय बेसिक कोर्स, यू कैन वॉच दैट काइंड ऑफ लेक्चर इन डिटेल। ओके, सो ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, इसके अंदर पेशेंट का डाटा अपडेट किया जाता है। मीन्स ये है कि पर्सनली जो मेडिकल प्रोवाइडर होते हैं उसकी बिलिंग कंपनी होती है। वी आर जस्ट कवरिंग मीन्स एज अ मेडिकल बीइंग मेडिकल बिलर, वी आर जस्ट storing different kind of patients data into that software. We are also sending the claims to insurances. Okay, इससे इंश्योरेंस को मैं ये कि क्लेम सेंड किए जाते हैं, और फिर ये कि इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस भी उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही मीन्स रिसीव होती हैं। सो इस तरीके से है कि काफ़ी सारे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल मीन्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं फॉर मेडिकल बिलिंग पर्पसेस। और नॉर्मली मीन्स है कि ये सेम नहीं होते, काफ़ी सारे डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को प्रेफर करती हैं। ओके, इसके अंदर मीन्स काफ़ी सारी वैरायटी होती है। ओके, so next is what are some best practices for medical billing? Best practices include verifying patients' insurance information, accurately documenting services rendered, coding correctly, submitting claims promptly, and following up on unpaid claims. Yes, इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होती हैं कि हाँ भी जब भी क्लेम बनाया जाता है उसके अंदर पेशेंट की एलिजिबिलिटी ली जाए, पेशेंट एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद यह है कि वेरिफिकेशन करने के बाद पेशेंट क्लेम बनाया जाता है, उसके चार्जेस बनाए जाते हैं, चार्जेस बनाने के बाद क्लेम सेंड किया जाता है, क्लेम सेंड करने के बाद उसके ऊपर फॉलोअप किया जाता है। अगर पेड है तो वेल एंड गुड, तो उसकी ईओबी मीन्स एक पोस्ट करवाई जाती है। और अगर अनपेड है तो उसके ऊपर रीज़न देखी जाती है कि हाँ भी क्यों अनपेड है। उसके ऊपर फिर जो डिनाइल होता है उसको फिर यह है कि डिनाइल को फिक्स करने के लिए या तो ये है कि वो आप मैनुअली उसको डिनाइल को फिक्स कर सकते हैं कि हाँ भी अगर कोई छोटा मोटा मीन्स ये कि डिनाइल है, और अगर ये है कि उसके ऊपर अपील बनती है देन यू शुड नीड टू सेंड द अपील। ओके, और उसके ऊपर ये है कि फॉलोअप करना पड़ता है। सो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मीन्स ये कि नॉर्मली मेडिकल बिलिंग के अंदर मीन्स यूज़ की जाती हैं। Okay, so what we have next, how can I stay updated with changes in medical billing regulations? Stay updated by attending, continuing education courses, participating in professional organizations, subscribing to industry publications, and regularly reviewing updates from regulatory एजेंसीज। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी सारी वर्कशॉप्स होती हैं, काफ़ी सारे जूम्स के सेशंस होते हैं, उनसे मीन्स ये है कि आप लोग अप टू डेट रह सकते हो। ठीक है, गूगल न्यूज़ होती हैं, वहाँ पर अप टू डेट रह सकते हो। मेडिकेयर के पोर्टल्स हैं, वहाँ पर आप अपडेट काफ़ी सारी अपडेट्स दी जाती हैं। और ठीक है, काफ़ी सारी सब्सक्रिप्शंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। सो यू गाइस नीड टू बी अपडेटेड इफ़ यू आर वर्किंग इन अ मेडिकल बिलिंग कंपनी। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने आप को जो न्यू चेंजेस आ रही होती हैं, हर इंश्योरेंस की काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो चेंज हो रहे होते हैं। सो यू नीड टू सब्सक्राइब देयर डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक्स। ठीक है, उनको सब्सक्राइब करने के बाद आप यह है कि उनकी जो काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं उनके साथ अप टू डेट रह सकते हो। व्हाट इज़ अ क्लीन क्लेम मीन्स नॉर्मली पूछा जाता है कि हाँ भी क्लीन क्लेम क्या होता है। ठीक है, इफ़ यू गाइस आर वर्ड अबाउट अ क्लीन क्लेम, क्लीन मीन्स ये है कि ऐसा क्लेम जिसके अंदर कोई एरर नहीं होता, कोई ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो एडजुडिकेशन के बाद इजीली प्रोसेस हो जाते हैं और उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो जाती है। क्लीन मीन्स नाम से ही जाहिर है कि क्लीन क्लेम मीन्स ऐसा क्लेम जिसके अंदर कोई भी ये है कि ट्रबल नहीं है, कोई ये है कि एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है।
A clean claim is a claim that is complete, accurate, and free of errors or discrepancies, making it more likely to be processed and paid promptly by an insurance company, as we have discussed. Okay. Okay, so what is the difference between in-network and out-of-network providers और medical billing? ठीक है, in-network और out-of-network billing क्या होती है? What is the difference between these two terms? In-network billing involves providers who have contracted with patient's insurance company. Means ऐसे providers जो patient के insurance company के साथ contract किया हुआ होता है कि हाँ भी जब भी ये patient हमारे पास आएगा हम इनको ये rates के ऊपर ये है कि services provide करेंगे, तो वो in-network आ जाते हैं। और ऐसे providers जिनके उस पेशेंट के इंश्योरेंस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो अपनी ही फी चार्ज करते हैं, वो आउट ऑफ नेटवर्क हो जाते हैं। ठीक है। So while out of network billing involves providers who do not have a contract with patient's insurance company, potentially resulting in higher cost for the patient, मींस इसके अंदर ये है कि नॉर्मली जो पेशेंट को कॉस्ट पड़ती है वो हाई पड़ती है। अगर इन नेटवर्क कोई प्रोवाइडर होता है तो उनके कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स होते हैं, वो स्पेसिफाइड रेट्स होते हैं कि हाँ भी इस रेट के ऊपर हम नॉर्मली इस पेशेंट को चेकअप करेंगे। सो वो ये है कि काफ़ी चीप पड़ जाता है उस पेशेंट को, रादर देन ये है कि आउट ऑफ नेटवर्क होना। ओके। What is revenue cycle management in medical billing? Revenue cycle management, we have also covered this lecture, covered this basic topic in first lecture. You guys need to watch that one lecture. What is RCM, revenue cycle management? Revenue cycle management encompasses the entire process of managing patients' revenue. ठीक है, फ्रॉम scheduling appointments to collecting payments with the goal of optimizing financial performance. ओके, मीन्स इसके अंदर ये है कि पेशेंट की मीन्स ये कि जब से उसने रजिस्ट्रेशन कराई और एंड तक उसकी जो कि पेमेंट रिसीव होनी होती है लास्ट, तब तक जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी स्टेप्स आ रहे होते हैं, जो भी मेथड्स एंड ठीक है चल रहे होते हैं, उन सबको इनकम्पास करता है ये रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ओके, so next we see what we have. What is the role of medical billing specialist? Medical billing specialist का role basically क्या होता है? A medical billing specialist is responsible for tasks such as verifying insurance coverage, submitting claims, follow up on unpaid claims, resolving billing discrepancies, and ensuring compliance with regulations. Yes, as a being medical biller, you guys need to work on patients insurance verification, उनकी verification करनी है, then you need to submit the claims, क्लेम सबमिट करने के बाद उसको ऊपर फॉलो अप करना है। पे हो गया है तो पेमेंट रिसीव होनी चाहिए, अगर पेमेंट किस तरीके से आई है, ईएफटी के जरिए आई है या चेक पेमेंट है, ठीक है, तो किस तरीके से पेमेंट हुई है। सो पेशेंट का जो क्या कहते हैं अकाउंट होता है वो अपडेट होना चाहिए, पेमेंट पोस्ट होनी चाहिए, अगर क्लेम डिनाइड है उसके ऊपर क्या डिनाइल आया है उसको रिव्यू करना है। उसके बाद यह है कि किस तरीके से उसको मीन ये कि अगर अपील बनती है तो अपील किस तरीके से बनानी है, अपील सेंड करनी है उस इंश्योरेंस को। सो ऑल दैट काइंड ऑफ अ स्टफ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल बिलर। ओके, व्हाट आर सम कॉमन रीजंस फॉर क्लेम डिनाइल्स? मींस कॉमन रीजंस क्या होती हैं? बहुत वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं रीजंस ना डिनाइल्स की। सो कॉमन रीजंस इंक्लूड कोडिंग एरर्स, कोडिंग का कोई एरर हो सकता है सीपीडी के अंदर, या ये है कि जो मॉडिफायर यूज़ किए जाते हैं, या इसके अलावा क्या कहते हैं जो आईसीडी होता है वो मीन्स ये है कि उसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप उसका नहीं होता, सो इसकी वजह से भी डिनाई हो जाते हैं क्लेम्स। ओके, मिसिंग और इनकरेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो सकती है, लाइक ये है कि किसी और पेयर को जाना था तो किसी और पेयर को क्लेम चला गया है, पेशेंट की जो आईडी है वो गलत है, पेशेंट का नेम गलत है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, एड्रेस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं फिर इसकी वजह से भी क्लेम डिनाई हो जाते हैं। एक्सीडिंग कवरेज लिमिट्स एंड फाइलिंग क्लेम्स पास द डेडलाइन, और नॉर्मली ये है कि समटाइम्स किसी रीज़न की वजह से अगर क्लेम लेट पहुंचा है इंश्योरेंस के पास, तो नॉर्मली हर इंश्योरेंस की काफ़ी सारी मीन्स ये कि डेडलाइंस होती हैं कि हमें 90 डेज़, 120 डेज़, ठीक है, 180 डेज़। सो डिफरेंट इंश्योरेंस के डिफरेंट मीन्स ये है कि टाइम लाइन्स होती है कि हाँ भी इसके अंदर अगर आप लोगों का क्लेम आ जाता है आफ्टर द डेट ऑफ सर्विस, ठीक है, तो उसके बाद ये है कि हम क्लेम प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम उस क्लेम को टाइमली फाइलिंग से डिनाई कर देंगे। ओके, सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इस तरीके से काफ़ी डिनाइल होते हैं, प्री ऑथराइजेशन के डिनाइल होते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिनाइल्स हमारे पास आते हैं। Okay, what is a super bill? A super bill is an itemized form used by healthcare providers to document services provided during a patient visit, including codes for procedures, diagnosis, and other relevant information for billing purposes. मीन्स एक ऐसा बिल जिसके ऊपर ये है कि सारी चीज़ें डायग्नोज की जाती हैं कि हम इस पेशेंट के ऊपर कि ये डायग्नोसिस किया गया है, इसको ये मीन्स ये कि कंडीशन है, इसके ऊपर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं, ताकि ये है कि इसके बाद जो हम क्या कहते हैं वो बना सकें, क्लेम बना सकें और इंश्योरेंस को सेंड कर सकें। इसके ऊपर सारी मीन्स ये है कि डॉक्यूमेंटेशन या पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉर्मली उसके ऊपर सुपर बिल के ऊपर ऐड होती है। व्हाट इज़ द डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस एंड को पेमेंट इन मेडिकल बिलिंग? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है, इसके लिए ये मीन्स थोड़ा सा रिजेंबल करती हैं क्योंकि पेमेंट्स होती हैं हर तरह की, लेकिन ये है कि इसके काफ़ी ये है कि डिमांड होती है कि हाँ भी a basic medical bill should know about these kind of things. A deductible is an amount a patient must pay out of pocket. वो अपनी पॉकेट से ही पे करता है before their insurance coverage kicks in. मीन्स कोई भी इंश्योरेंस प्लान आप लेते हो उसको स्टार्ट करने से ये है कि
पहले ही मीन्स ये है कि इससे पहले कि आपके इंश्योरेंस वो कवरेज को पूरा करे या स्टार्ट करे, वो स्टार्ट मीन्स ये कि पे स्टार्ट करना स्टार्ट करे, तो उससे पहले ये कि आपको एक हैंडसम अमाउंट वो पे करनी पड़ती है, उस पेमेंट को हम डिडक्टिबल कहते हैं, ठीक है। और ये आउट ऑफ पॉकेट से ही जाते हैं पेशेंट के। को इंश्योरेंस इज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आफ्टर मीटिंग द डिडक्टिबल्स। जब एक पेशेंट उस डिडक्टिबल्स को जो उसने अपनी इंश्योरेंस लाया की है कि अगर आप किसी पे ये है कि कोई प्लान लेते हैं, कोई भी एक इंश्योरेंस प्लान लिया है किसी पेशेंट ने, तो उसको स्टार्ट करने के लिए उसको $1000 पे करने थे, तो उसने $1000 जब वो पे कर देता है, तो उसके बाद इंश्योरेंस क्या कहते हैं, कोई भी अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर मीन्स लेता है किसी भी प्रोवाइडर से, तो उसके बाद ये है कि उसका क्लेम जब बन के जाता है इंश्योरेंस को, तो फिर उसकी डिफरेंट रेशो होती है कि हाँ भी 80-20 होती है, 30-70 होती है। तो 70% या 80% इंश्योरेंस कवरेज करती है, उसके बाद जो 20% रह जाता है, तो अगर उसके पास कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो वो पे करेगी, अदरवाइज ये है कि वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इस तरीके से। तो जो नेक्स्ट ये को इंश्योरेंस रेट होता है, ठीक है, मीन्स उसके बाद जब डिडक्टिबल्स वो मेट कर लेता है, उसके बाद जो को इंश्योरेंस की जो अमाउंट होती है वो ये है कि डिवीजन हो जाती है, ठीक है। ये पेशेंट की फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कुछ इंश्योरेंस पे करती है, दैट इज को इंश्योरेंस। A co-payment is a fixed amount the patient pays for each healthcare services। जब पेशेंट की मीन्स ये है कि कोई भी सर्विस लेने जाता है तो वहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है, ठीक है। कोई 20 ये थोड़ी होती है $20, $30, 40-50, मीन्स ये कि डिफरेंस इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट नॉर्मली ये है कि हाँ भी ये डिफर करती है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी अमाउंट होती है, जब भी आप कोई सर्विस लेने जाते हो तो फिक्स्ड अमाउंट होती है आपको एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, या मीन्स ये कि अगर आपने चेकअप करवाना है तो वो उस टाइम पे आपको प्रोवाइडर को ये पे करनी पड़ती है। What is a national provider identifier and why it is important? As NPI is a unique identification number assigned to healthcare providers by CMS, Center for Medicare and Medicaid Services, used for billing and identification purposes, ensuring accurate identification for providers in ट्रांजेक्शंस। मीन्स कोई भी आप क्लेम जब भेजा जाता है उसके ऊपर पेशेंट जो हमारा प्रोवाइडर्स होते हैं उनका एनपीआई, रेफरिंग का और रेंडरिंग दोनों प्रोवाइडर्स का वहाँ पर एनपीआई लाजमी दिया हुआ होता है, अदरवाइज इंश्योरेंस इज नॉट गोइंग टू पे दैट काइंड ऑफ अ बिल। ओके, सो एनपीआई इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब भी आप पेशेंट को के लिए कॉल करते हो किसी भी इंश्योरेंस को, तो उनको जाहिर सी बात है आप लोग एनपीआई भी प्रोवाइड करते हो। टैक्स आईडी होती है जो नॉर्मली ये है कि गवर्नमेंट असाइन करती है हर प्रोवाइडर को, ठीक है। उनका टैक्स आईडी पूछते हैं इंश्योरेंस कंपनीज वाले, एनपीआई भी पूछ सकते हैं कि हाँ भी किस एनपीआई के अंदर आप लोगों ने क्लेम जो है बिल किया है। इसके बगैर आप लोगों को दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ स्टेटस फॉर एनी क्लेम। ओके, सो इस तरीके से ये है कि जो पेशेंट की क्या कहते हैं आपने क्लेम्स को फॉलो अप करना होता है, आप लोगों को एनपीआई, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन, ये लाजमी आप लोगों को रिक्वायर होता है। What is the difference between professional billing and facility billing? Means professional billing और facility billing के अंदर मीन्स क्या डिफरेंस होता है? Professional billing involves billing for services provided by individual healthcare provider or professionals, while facility billing involves billing for services provided by healthcare facilities such as hospitals or clinics। प्रोफेशनल बिलिंग में ये है कि इंडिविजुअल प्रोवाइडर होता है, कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, उसकी मीन्स ये कि अपनी एक मीन्स ये कि उसने अपना एक वो बनाया हुआ है, मेडिकल मीन्स ये क्लिनिक भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो बनाया हुआ है, उसके अंदर जब वो इंडिविजुअली एक काम के साथ मीन्स ये कि सब सिर्फ सोल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अकेला ही काम कर रहा है, सो उसको ये है कि प्रोफेशनल बिलिंग में आ जाता है। जब ये जबकि ये फैसिलिटी नाम से ही चीज़ जाहिर है कि हाँ भी एक फैसिलिटी कोई मीन्स ये है कि मेडिकल बिलिंग फैसिलिटी है, तो उसके अंदर कोई ये है कि कोई हॉस्पिटल है, उसके अंदर कोई सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही होती हैं, डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं वहाँ पर नॉर्मली, तो उनकी जब बिलिंग की जा रही होती है तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटी बिलिंग, ठीक है। प्रोफेशनल में जस्ट एक सिंगल प्रोवाइडर आ जाता है, इंडिविजुअल प्रोवाइडर आ जाता है, और इसके अलावा यह कि नॉर्मली क्लिनिक के अंदर काफ़ी सारे मीन्स ये है कि प्रोवाइडर्स काम कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स काम कर रहे होते हैं, जब वो आते हैं तो फिर वो फैसिलिटी बिलिंग हो जाती है। ओके, हाउ कैन आई ट्रांजिशन फ्रॉम अ कैरियर इन मेडिकल कोडिंग टू मेडिकल बिलिंग? अगर कोई मेडिकल कोडिंग से मेडिकल बिलिंग की तरफ आना चाहता है तो फिर मीन्स ये किस तरीके से ट्रांजिशन कर सकता है, या वाइस वर्सा, या मेडिकल बिलिंग से मेडिकल कोडिंग की तरफ आना चाहता है। बट इन माय ओपिनियन मेडिकल बिलिंग से मेडिकल कोडिंग की तरफ जाना काफ़ी इजी होता है रादर देन कि मेडिकल कोडिंग से मेडिकल बिलिंग की तरफ आया जाए, ठीक है। ये वाइस वर्सा है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट पीपल, बट फ्रॉम इन माय ओपिनियन क्योंकि मेडिकल कोडिंग को सीखना काफ़ी टफ होता है इनिशियली, ठीक है। आप अगर मेडिकल बिलिंग से मेडिकल कोडिंग की तरफ जाते हैं दैट इज लिटिल बिट ईजियर। Okay, so transition by gaining knowledge of medical billing processes, learning billing software, and obtaining relevant certifications or training to demonstrate proficiency in medical billing tasks. Normally medical billing के अंदर आपको basics पता होती हैं कि हम भी medical coding का भी आप जान लेते हो कि हम medical coder क्या करते हैं। So okay, so उसके बाद ये है कि medical billing के अंदर patients की मीन्स ये है कि इंश्योरेंस की वेरिफिकेशंस आ गई, क्लेम्स का फॉलो अप आ गया, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं ये आप लोगों को नो हाउ पता होती हैं। बट मेडिकल कोडिंग के अंदर बेसिकली आपने सिर्फ ये है कि कोड्स बनाने होते हैं,
ओके, सो दैट इज लिटिल बिट मीन्स ये है कि थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट हो जाता है मेडिकल बिलिंग से हटके। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने कोडिंग करनी होती है। सो अगर किसी का इंटरेस्ट होता है तो वो इन दोनों को मीन्स ये है कि शफल कर सकता है। बट मेडिकल कोडर्स आर मोर पेड देन मेडिकल बिलर्स, ये भी एक फैक्ट है। What is the role of electronic health records in medical billing? Electronic health records का मीन्स ये कि रोल मेडिकल बिलिंग के अंदर नॉर्मली क्या होता है। EHR system store patients information including diagnoses and procedures facilitating accurate billing and claim submission improving efficiency and reducing errors। मेडिकल जितने भी सॉफ्टवेयर मीन्स जाहिर सी बात है मेडिकल बिलिंग कंपनीज काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। उसके लिए है कि बेसिकली उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं पेशेंट का डाटा स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद ये है कि उसके अंदर अपडेट भी किया जाता है, कोई क्लेम भेजा जाता है। जितनी क्लेम भेजे जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के जरिए ही भेजे जा रहे होते हैं। ठीक है, पेमेंट्स जो रिसीव हो रही होती हैं वो EFT या EOB उसके अंदर ही पोस्ट की जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर जो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, मेडिकल बिलिंग कंपनीज बेसिकली। Okay, so next we have it's what is write-off in medical billing. Write-off, that the specific terms which is used if you are having a claim which is not being paid। ठीक है, किसी तरीके से वो पे नहीं हो पा रहा, मीन्स ये कि फाइनली है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप रिजॉल्व भी नहीं कर सकते, सो उसको फिर ये राइट ऑफ कर देना मीन्स ये है कि उसको एडजस्ट कर देना। ऐसा क्लेम जिसको ये है कि किसी भी रीज़न की वजह से जब हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ना हम इंश्योरेंस को फिर वो क्लेम पे होता है ना ही किसी पेशेंट से वो पे होता है, तो उसको राइट ऑफ करना मीन्स एडजस्टमेंट करना। ओके, a write-off occurs when a healthcare provider agrees to accept less than the full amount owed by a patient or insurance company as payment in full for services rendered। ठीक है, इसके अंदर ये कंडीशन होती है कि हाँ भी जो प्रोवाइडर होते हैं जिसने सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं तो वो मीन्स ये है कि एक्नॉलेज करता है कि हाँ भी अब ये है कि जो क्लेम है ये ना तो पेशेंट को बिल हो सकता है, ठीक है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी को बिल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एरर्स थे या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर ये है कि वो पेमेंट आपको रिसीव नहीं हो सकती, तो वो जो क्लेम होता है उसको फिर हम नॉर्मली राइट ऑफ कर देते हैं। ओके, so what is a clearing house and how does it impact medical billing? A clearing house is a third party service that processes and submits healthcare claims electronically to insurance companies on behalf of healthcare providers, improving efficiency and accuracy in billing। क्लियरिंग हाउस बेसिकली ये है कि जब आप इंश्योरेंस कंपनी को कोई बिल सेंड करते हैं, ये क्लेम भेजते हैं, उस भेजने से पहले क्लियरिंग हाउस के पास हो जाता है। ठीक है, बेसिकली नॉर्मली सॉफ्टवेयर होते हैं वो चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ही कि हाँ भी इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होता है तो वो उसको ये है कि इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेजते, उससे पहले ये है कि वो आप लोगों को एरर वर्क क्यू के अंदर भेज देते हैं जहाँ पर आप लोगों के नॉर्मली क्लेम्स पड़े होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर कोई इश्यूज़ वगैरह होते हैं, कोई एरर्स होते हैं, तो उनको रिजॉल्व किया जाता है। उसके बाद ये है कि फिर दोबारा क्लेम पे जाते हैं। मीन्स ये एक ब्रिज होती है बिटवीन द मीन्स ये है कि मेडिकल बिलिंग कंपनी के अंदर और इंश्योरेंस के अंदर। जब मेडिकल बिलिंग कंपनी कोई भी क्लेम भेजती है किसी इंश्योरेंस को, तो उसके दरमियान में एक ब्रिज होती है, क्लियरिंग हाउस होता है, वो चेक करता है कि हाँ भी आया कि ये क्लेम ठीक है कि नहीं है, इसके अंदर कोडिंग जो की गई है वो ठीक है कि नहीं है। सो काफ़ी सारी इसके अंदर मीन्स है कि चीज़ें चेक की जाती हैं उस क्लेम के अंदर। ठीक है, अगर वो क्लेम ओके होता है तो वो भेज देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ही। अगर वो नहीं होता तो ये है कि वो वापस आ जाता है। Okay, so what is a coordination of benefits in medical billing? COB occurs when a patient has multiple insurance plans and the insurance companies coordinate to determine which one is the primary payer, reducing the risk of overpayment or duplication of benefits। नॉर्मली पेशेंट्स के पास मीन्स ये है कि एक या एक से ज़्यादा क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस प्लान्स उसने उन्होंने परचेज़ किए होते हैं। तो ये है कि जब देखा जाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स के अंदर कि हाँ भी अगर एक प्राइमरी पेयर ने कुछ पे कर दिया तो दूसरी इंश्योरेंस के पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ भी इसका प्राइमरी पेयर ये है, उस प्राइमरी पेयर ने इतना पे किया है। अगर ये हो सकता है कि हाँ भी अगर ये इनके पास कोऑर्डिनेशन ना होती आपस के अंदर मीन्स दोनों इंश्योरेंस के दरमियान, तो ये है कि कुछ वो पे कर देते और उसी तरीके के कुछ ज़्यादा अमाउंट वो भी सेकेंडरी इंश्योरेंस भी पे कर देती, तो काफ़ी इशू हो जाना था। तो इस वजह से नॉर्मली कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स दोनों इंश्योरेंस के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन होती है। इंश्योरेंस मीन्स प्राइमरी इंश्योरेंस है, ठीक है, सपोज BCPS प्राइमरी इंश्योरेंस है, वो सेकेंडरी इंश्योरेंस डिस्कोल है या कोई और दूसरी इंश्योरेंस है, तो उसके अंदर बेसिकली यही होता है कि हाँ भी जो सेकेंडरी इंश्योरेंस है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ भी प्राइमरी ने ये प्रोसेस किया है। ठीक है, वो भी उनको भी मीन्स ये है कि उनके पास इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सारी होती है कि हाँ भी प्राइमरी ने ये क्लेम प्रोसेस किया है, उन्होंने इतनी पेमेंट की है, उन्होंने इतने डिडक्टिबल्स बनाए हैं या इतनी को इंश्योरेंस बनाई है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ताकि ये है कि ओवर पेमेंट ना हो। ओके, so what is a modifier in medical billing and how is it is used? Okay, a modifier is a two-digit code.
ठीक है, 2 डिजिट का कोड होता है, to a CPT or HIPAA code to provide additional information about the services provided, such as indicating the multiple procedures, exceptions, or special circumstances impacting रीइंबर्समेंट रेट्स एंड क्लेम प्रोसेसिंग। नॉर्मली ये कि अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है उसके साथ ना हम मॉडिफायर्स यूज़ कर देते हैं, 29, 59, XU, बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं, वो ये जाहिर करने के लिए होते हैं कि हाँ भी इसके अंदर कोई अगर एडिशनल कोई प्रोसीजर मीन जी के काम किया गया है किसी सर्जरी के दौरान, ये मीन जी है कि स्पेसिफिक प्रोसीजर था उसके साथ एक कोई एडिशनल मीन जी है कि ट्रीटमेंट भी दिया गया है, तो उसको ऐड करने के लिए ये हम नॉर्मली मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ डू आई हैंडल बिलिंग फॉर सेल्फ पे पेशेंट्स। अगर सेल्फ पे पेशेंट की जो बिलिंग होती है उसको फिर कैसे हैंडल किया जाता है। हैंडल सेल्फ पे पेशेंट्स बाय एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ऑफरिंग पेमेंट प्लान्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑप्शंस, कम्युनिकेटिंग पेमेंट एक्सपेक्टेशंस अपफ्रंट एंड फॉलोइंग अप ऑन अनपेड बैलेंस प्रॉम्प्टली। ठीक है, नॉर्मली ये है कि अगर कोई पेशेंट की जो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो हम पेशेंट्स को उनकी स्टेटमेंट्स भेजते हैं, पेशेंट बाद में कॉल करते हैं कि हाँ भी अगर ये है कि बैलेंस ज़्यादा होता है तो हम नॉर्मली जो मेडिकल बिलिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनको ये है कि डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या ये है कि इंस्टॉलमेंट्स की प्लान्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम भी आप जो अपनी पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी इजीली पे कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से ये है कि जो पेशेंट्स के जो सेल्फ पे केसेस होते हैं जो सिर्फ पेशेंट ने ही पे करने होते हैं तो उनके ऊपर ये इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। ओके, हो सकता है कि हाँ भी उनकी कोई इंश्योरेंस भी ना हो तो ये है कि वो फिर डायरेक्टली जो क्लेम होता है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकेयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वो फिर जो क्लेम होता है वो पेशेंट को ही डायरेक्टली बिल किया जाता है। ठीक है, वो सेल्फ पे होता है नॉर्मली। So what is the impact of telemedicine on medical billing? Telemedicine services present unique billing challenges and opportunities requiring providers to understand regulations, coding guidelines, and reimbursement policies specific to virtual care delivery. Virtual care means ये है कि अगर एक प्रोवाइडर एक जगह एक कंट्री के अंदर बैठा है और वो दूसरी कंट्री के अंदर मीन्स वाया वीडियो ऑडियो वीडियो, ठीक है, मीन्स ये है कि वर्चुअल जूम के ऊपर कोई सेशन हो रहा है तो उसके साथ ये है कि अगर वहाँ पर वो पेशेंट्स को डायग्नोस करता है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट्स करता है, उसके मीन्स ये है कि चेकअप करता है, तो ये है जो होता ये जो प्रैक्टिस की जाती है इसको टेलीमेडिसिन कहते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस लेक्चर इन डिटेल। इफ यू आर विलिंग टू लर्न what is telemedicine, then you can watch that kind of a lecture. Okay, so next is what is preferred provider organization and how does it impact medical billing. अब PPO plan होते हैं, कुछ HMO plans होते हैं, health maintenance organization. So यहाँ देखते हैं कि what is PPO plan is a type of healthcare insurance plan that contracts with a network of preferred providers offering discounted rates for covered services impacting billing rates and reimbursement policies. मीन्स कि preferred provider organization इसके अंदर ये है कि मीन्स ऐसे providers जो ये है कि नेटवर्क के अंदर होते हैं, सो उनके साथ कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स होते हैं, सो इसके अंदर पेशेंट्स को ये है कि कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, जब भी वो उनसे मीन्स कि ऐसे प्रोवाइडर्स जो पीपीओ प्लान के अंदर आते हैं तो उनसे जब जाके चेकअप करवाते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं तो पेशेंट्स को ये है कि कम पेमेंट करनी पड़ती है और उनका जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये है कि मीन्स ये है कि उन प्रोवाइडर्स के साथ बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टेड साइन होता है, मीन्स ये है कि उनके रेट्स को फिक्स्ड होते हैं कि हाँ भी इन्होंने जब पेशेंट को प्रोवाइड करनी है कोई भी सर्विस तो ये इस रेट के ऊपर वो करेंगे। ठीक है, what is a pre-authorization and why is it necessary for certain medical procedures? A pre-authorization is a approval from an insurance company before certain medical procedures or services are preferred. It helps insurance ensure that the service is medically necessary and covered by the patient's insurance plan. ठीक है, ये देखा जाता है कि यहाँ पे प्री ऑथराइजेशन, प्री मीन्स ये कि पहले ही ऑथराइजेशन ले लीजिए चाहिए कि हाँ भी अगर आप कोई मेडिकल प्रोवाइडर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हो उस पेशेंट को, ठीक है, तो वो ये है कि उसकी इंश्योरेंस कंपनी से ऑथराइजेशन लेता है कि हाँ भी मैं इस सर्विस को प्रोवाइड करना चाहता हूँ, सो मुझे इसका ऑथराइजेशन नंबर प्रोवाइड किया जाए ताकि यह है कि जब हम क्लेम बनाएं तो उसके ऊपर वो ऑथराइजेशन नंबर ऐड किया जाए और जो हमारा क्लेम है वो प्रोसेस और पेड हो जाए। ठीक है, ये नॉर्मली ये है कि मेडिकल बिलिंग जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो नॉर्मली ऑथराइजेशन लेते हैं ताकि ये है कि जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं ये मेडिकली नेसेसरी है। ठीक है, और ये बेसिकली पेशेंट्स के उस प्लान के अंदर नहीं आता होता। ठीक है, लेकिन यह है कि हमें प्रोवाइड इस वजह से परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये मेडिकली नेसेसिटी है, ताकि यह कि अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करेंगे मीन्स ये है कि ये प्रोसीजर तो ये है कि पेशेंट्स की मीन्स ये है कि हेल्थ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, सो इस वजह से प्री ऑथराइजेशन ना लाजमी होता है। ओके, सो this was all it. So thank you so much once again for watching me on my YouTube channel. So if you guys have any kind of a questions, अगर आप लोगों के इसके अलावा भी कोई frequently asked questions हों, you guys can let me know. Okay, और medical billing jobs के बारे में, yes, we need to cover this kind of a topic as well. I have already made lectures on, मेरे काफ़ी सारे तकरीबन 5 से 6 lectures medical billing remote jobs और on site और office based jobs के ऊपर बन चुके हैं। आप लोग किस तरीके से jobs gain कर सकते हो। I have already made lectures on Glassdoor, Indeed,
लिंक्डइन, ठीक है। और इसके अलावा और भी दो तीन पोर्टल्स के ऊपर मैंने बताया कि हाँ भी इस तरीके से आप लोग जॉब्स गेन कर सकते हो। आर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द monster.com कि हाँ भी मॉन्स्टर के ऊपर आप किस तरीके से साइन अप करते हो, ठीक है। साइन अप करने के बाद आप किस तरीके से मेडिकल बिलिंग, नॉट ओनली मेडिकल बिलिंग बट अदर काइंड ऑफ कंपनीज या अदर काइंड ऑफ फील्ड्स के अंदर किस तरीके से जॉब्स सर्च कर सकते हो, और उसके अंदर ऑफिस बेस्ड या रिमोट जॉब्स कैसे सर्च कर सकते हैं। ओके, so we will cover that kind of topic in the next lecture. So till then, take care of yourself and your family, and remember me on kind prayers. Inshallah, we'll meet in the next lecture. So stay blessed. If you guys have any questions, concerns, or problems regarding this lecture, then you guys can just comment on the video, or you can let me know personally on my WhatsApp number. Okay, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.